السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ اہم اور تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے۔ بھارت کو پاکستان پر کیے گئے حالیہ جارحانہ آپریشن سندور کے دوران بدترین فضائی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نقصان میں مجموعی طور پر 956 ملین امریکی ڈالر، تقریباً 267 ارب روپے کے جنگی طیارے تباہ ہو گئے۔ پاکستان ایئر فورس نے 3 رافیل اور ایک Su-30 Mk1 اور ایک MiG-29 طیارہ تباہ کر ڈالا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کے بعد ISPR کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ پاکستان اب تک 25 اسرائیلی ساختہ ہیروب ڈرونز گرا چکا ہے۔ اسرائیلی ساختہ ڈرونز سافٹ کل اور ہارڈ کل ہتھیاروں سے گرائے ہیں۔ یہ بزدلانہ حملہ بھارت کی پریشانی اور بوکھلاہٹ کی نشانی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھی بھارت نے بھرپور نقصان اٹھایا اور اٹھا رہا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے اسرائیلی ساختہ ہیروب ڈرونز کا ملبہ اٹھایا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ اب تک 25 اسرائیلی ساخت کے ہیروب ڈرونز گرا چکے ہیں۔ ISPR کے مطابق لاہور، گجرانوالہ، چکوال، بھاورپور، میانو، کراچی، چھور، راولپنڈی اور اٹک میں ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا، جبکہ لاہور میں 4 افسران زخمی ہوئے۔ پاک فضائیہ نے گزشتہ رات کی جھڑپ میں بھارت کے 5 لڑاکا طیارے، جن میں 3 جدید رافیل شامل تھے، مار گرائے، جس سے بھارت کے دفاعی نظام کو اسٹریٹجک، نفسیاتی اور سفارتی سطح پر شدید دھچکا پہنچا۔ واقعے کے بعد رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی کے شیئرز گر گئے، جبکہ پاکستانی JF-17 اور J-10C اور چینی کمپنی کے شیئرز میں اضافہ ہوا۔ اس کامیابی نے پاک فضائیہ کو رافیل طیارہ مار گرانے والی دنیا کی پہلی فورس بنا دیا۔ مروٹ میں پاک فوج نے چاپو کے قریب بھارتی ڈرون مار گرایا، دھماکے سے ڈرون تباہ ہو گیا۔ مغربی جانب بھارتی پے لوڈ گرنے کی اطلاعات ہیں۔ رینجرز اور پولیس موقع پر پہنچ چکی ہیں۔ صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دینا میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مظفر اقبال کی قیادت میں ایک اور پرامن ریلی نکالی گئی، جس میں وکلا اور تاجر برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ قاری ظفر اقبال نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے۔ شرکاء نے قومی پرچم اٹھا کر یکجہتی کا اظہار کیا۔ ریلی کا اختتام ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کے ساتھ ہوا۔ شکرگڑھ میں بھارتی بزدلانہ حملوں میں شہید ہونے والے ننھے شہداء اور نہتے شہریوں کی یاد میں میونسپل بلدیہ لان میں شمعیں روشن کی گئیں۔ تقریب میں تحصیل انتظامیہ، سول سوسائٹی، تاجر برادری، اسکولز ایسوسی ایشن اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ پاکستان پر بھارت کے بزدلانہ حملے کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں تحصیل احمد پور سیال میں صحافی اور تحصیل انتظامیہ کی طرف سے ریلیاں نکالی گئی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں احمد پور سیال سے چودھری محمد اسلم طاہر کی رپورٹ۔ پاکستان پر بھارتی حملہ کے خلاف احمد پور سیال کے صحافی بھی میدان میں آ گئے۔ پل نجف چوک تا نیشنل بینک احمد پور سیال احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال وقاص ظفر، DSP احمد پور سیال رانا نعیم یاسین، حجاز بٹ، چودھری عرفان چدھڑ اور عرفان ہرپل نے کی۔ ریلی میں تاجر رہنماؤں، عمائے دین شہر، سول سوسائٹی اور ستھرا پنجاب پروگرام کی ٹیم نے بھی شرکت کی۔ شرکائے ریلی نے بھارت مخالف اور پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، انڈیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر نے کہا کہ رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کرنے والوں کو دن کے اجالے میں تارے دکھائیں گے۔ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں، ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیں آخری دم تک ہم لڑنے کو ترجیح دیں گے، بجائے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ اور آج کا جو یہ کٹ ہے انشاءاللہ ہمیں پیغام پاک فوج کے بالکل ساتھ ہیں اور میں ایک نعرے کے ساتھ اس کو کرنا چاہوں گا، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میونسپل کمیٹی گڑھ مہاراجہ کی طرف سے بھی اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر کی قیادت میں گڑھ موڑ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ پاک پتن میں کینال پارک میں بھارتی جارحیت کا نشانہ بننے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شمعیں روشن کی گئیں۔ تقریب میں انتظامیہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔
SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत अर्दल रूम्स का सिलसिला जारी है। रवा साल 678 शो कॉज नोटिस पर समाअत की गई। 6 अफसरान और अहलकार बरतरफ कर दिए गए। 2 को तनज़ुली, 230 को सर्विस जब्तगी और 82 को मामूली सजाएं दी गईं। SSP ने करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस और मौसर खुद एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद के अज़म का इजहार किया। दाता दरबार खुदकश हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की छठी बरसी पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने खराज अकीदत पेश किया। 2019 में 5 एहलकारों ने दौरान ड्यूटी जानों का नजराना पेश किया। शुहदा में 3 हेड कांस्टेबल्स गुलजार अली, शाहिद नज़ीर, मोहम्मद सुहेल और 2 कांस्टेबल्स मोहम्मद सलीम और सदाम हुसैन शामिल हैं। उखाड़ा में जिला कौंसिल में भारतीय हमलों में शहीद होने वाले अफराद को खराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और DPO राशिद हिदायत समेत ज़िले अफसरान, उलमा कराम, ताजिर नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक हुए। शमए रोशन की गई और मुल्की सलामती और शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। चिन्योट में कोट वसावापू पुलिस ने डकैती की वारदात में मुलविस डाकुओं को चंद घंटों में जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जड़ावाला वाली पुल पर मुकाबले के दौरान डाकुओं ने पुलिस फायरिंग की, ताहम SHO राय वसीम सजाद और टीम ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए मुलजिमान को काबू कर लिया। चिन्योट में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई में मोहल्ला गढ़ा में गैर कानूनी मज़बा खाना पकड़ा गया, जहां बीमार जानवरों का 1.5 मन से जायद मुज़रे सेहत गोश्त सप्लाई के लिए तैयार था। गोश्त तलब करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर भर में 119 फूड बिजनेस की चेकिंग के दौरान 3 दूध बरदार गाड़ियों और 9 कारोबार पर 63,000 रुपये जुर्माने आयद किए गए और 15 किलो से ज़ायदुल मियाद अशिया तलब की गई। साहिवाल नईवाला बंगला आयशा सिटी में वाक़या प्राइवेट स्कूल में कमसिन तालिब इल्म पर स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से तशद्दुद का वाक़या सामने आ गया। मज़ीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइएगा। आयशा सिटी मौजूद है, नाई वाला बंगला हड़प्पा के इलाका है। यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल में बच्चे पर तशद्दुद किया गया। 1-2 रोज गुजर गए इस मामले को। हम लोग पहुंचे यहाँ, मुतासरा बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी जानते हैं। तशद्दुद के निशान वाज़ेह नजर आ रहे हैं। एक जानब तो हुकूमत का बड़ा ऐसा इक़दाम है, हुकूमत का सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं इस पे कि सरकारी स्कूल, मेहरी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में लोग इसलिए आते हैं कि शायद तशद्दुद या ऐसी चीजों से बच सकें। लेकिन क्या ये उस्ताद ऐसे होते हैं? एक बच्चे ने तशद्दुद किया तो कल या परसों मोहम्मद यान मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਟਿਕਸ ਲਗਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਸਹੀ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ बाजू पूरा तो नीला हो गया। मैं तो वही कह रहा ना कि 2 स्टिक्स लगाई हैं या ये होना चाहिए रवैया। आप भी बच्चों वाले हैं, ये जरा मुलाजा फरमाए डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, CO एजुकेशन साहब, ये आपका मतलब क्या है? ये आपके इदारे हैं, आप इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। आपकी सरपरस्ती में कम से बच्चा है जिस पर तशद्दुद किया गया, जुल्म की इंतहा की गई है, ये इस बच्चे से चला भी नहीं जा रहा। मुझे तकलीफ हुई है, कैमरा में देखने वाले लोगों को इस तशद्दुद के बारे में तकलीफ होगी। उस्ताद ये सिखाते हैं स्कूलों में, हमें ये तालीम दी जाती है कि मार नहीं, प्यार नहीं का नारा ये आपका इक़दाम है, ये आपकी निगरानी, ये आपकी हुकूमत है, ये आपकी निगरानी है। तो आइए बच्चे के वाले से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे बेटे को तशद्दुद किया गया। अब ये इसके बाजू और टांगे इस तरह की जैसे टूटी पड़ी हैं। क्या कहेंगे आप? सर मुझे इंसाफ चाहिए इसका। किस इंसाफ मांगे? जो अफसर हैं वो इंसाफ दें, मुझे दें। कौन सी जगह, कौन सी है? आयशा सिटी टाउन है। किस जगह? हड़प्पा स्टेशन, नाई वाला बंगला जी। मुझे सर मारने लग गए। 12 बजे से 5 बजे तक मारते ही रहे हैं। कहाँ पे मारा है आपके? यहाँ पर बाजू पर मारा है, टांग पर भी मारा है, टांग पर दोनों टांगों पर मारा है, यहाँ पर भी मारा है और यार मैं अंकल नहीं यहाँ पर भी मारा है। चलने में तकलीफ होती है, चल नहीं सकते?
तक नहीं होती। ये तो एक बड़ा अहम इशू है। साहिवाल में प्राइवेट स्कूल एक जो है माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है, फीसों के हिसाब से और जो इनके नाज नखरे हैं उस हिसाब से। कम तालीम याफ्ता टीचरें रखी हुई हैं, कम उजरत पर उनको रखा गया है। कोई कानून नाम की चीज नहीं है कि जो कोई इन पे अमल दरामद करवा सके। लोगों फीसों की मद में भी लूटा जाता है, फिर तशद्दुद किया जाता है। ये कोई पहला केस नहीं है पंजाब में कि स्कूल में तशद्दुद हुआ है बच्चे के ऊपर। ये हजारों ऐसे केस हैं। ये 1-2 दिन स्टोरी चलेगी, उसके बाद ये मामला फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि इंतजामिया ने कार्रवाई नहीं करनी इनके खिलाफ। जी, हासिलपुर में भारतीय बुज़दिलाना हमले के खिलाफ पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए अंजुमन ताजरान, सियासी व मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी के तहत रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। रैली की क़यादत मलिक अब्दुल हमीद ने की। आखिर में शुहदा और मुल्की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। साहिवाल थाना डेरा रहीम के इलाके में ट्रैक्टर छीनने का वाक़या सामने आ गया। मजीद तफसील बताएंगे राना सद्दाम हुसैन। जी सद्दाम हुसैन, बताइएगा। हमारे साथ एक किसान मौजूद है, थाना डेरा रहीम का इलाका है, नाई वाला रोड पर मौजूद है हम लोग। इन्होंने कोई ट्रैक्टर खरीदा था बूरे वाला से, तो सुनने में आया बकौल इनके कि वो जो पार्टी है वो सूद का काम करते हैं, ज्यादा मुनाफा लेके ट्रैक्टर दे दिया इनको, वो ट्रैक्टर छीन के ले गए। अब एक और किसान को इधर ट्रैक्टर दिया हुआ था दूसरा, वो छीनने के लिए आए तो मौके पे क्या बंदे पकड़े गए। क्या तफसील है, इनसे जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है, 160 नंबर का मैं रहायशी हूँ। मैंने ट्रैक्टर किश्तों पे सूद वालों से लिया था। उन्होंने सूद भी लगाया 10-15 लाख रुपए, और फिर वो ट्रैक्टर 1 महीने बाद ही छीनने आ गए। लिखित पढ़ तो उन्होंने दी नहीं और ट्रैक्टर छीन के ले गए। बाबा जी के पास ट्रैक्टर मैंने रोका था और इनसे वो जो मेरा मलकीती ट्रैक्टर था 385 वो भी मानत में खानत करके ले गए। और दूसरी मर्तबा ये 260 ट्रैक्टर था, ये इन्होंने छीनने की कोशिश की है और पकड़े गए हैं। कब का वाक़या है ये? तकरीबन 3-4 दिन पहले का वाक़या है। थाना डेरा रहीम वालों ने आए हैं, इधर पुलिस आई है और उन्होंने ये ट्रैक्टर मौके पे बरामद कर लिया है। अभी भी ट्रैक्टर वो इधर ही खड़ा है। वो गाड़ी जिस पे वो वारदात छीनने आए थे वो गाड़ी भी अभी डेरा रहीम थाना में भी खड़ी है। जो बंदे ट्रैक्टर छीन रहे ऐसे बुरे वाला से ट्रैक्टर वो इधर छोड़ के चले गए, छुपा दिया। इधर छुपाया था ट्रैक्टर, उन्होंने छीना है मालन शाह चौक से। अच्छा, पकड़ा किधर गया? पकड़ा इधर गया है, वो गाड़ी पे भाग रहे थे, 50 वाले अड्डे से पकड़ा है उन्होंने। मेरे साथ भी वारदात हुई थी और ये मैं भी उधर मौके पे मौजूद था। वही बंदे थे ये? वही बंदे थे जो बुरे वाला के जो सूद का काम करते हैं। नाम क्या? उनका नाम शराम शफाक है और शफाक उसके वालिद का नाम है, और उसके साथ 3-4-5-6 बंदे थे जो कि हमें उनके नाम नहीं मालूम। ये मुतासर लोग हमारे साथ मौजूद थे। ये मेरा कैमरामैन आपको फिर एक दफ़ा दिखाता है कि ये वो मक्की की फसल है जिससे ट्रैक्टर बरामद हुआ। ये एक माफिया है जो ट्रैक्टर लीज किश्तों का काम करते हैं, किश्तों की आड़ में सूद पे ट्रैक्टर, ये असल सूद का कारोबार है। ये लाखों रुपए के ऊपर लाखों रुपए सूद लगाया जाता है, उसके पैसे लेने के बाद ट्रैक्टर छीन के ले जाते हैं वापस। ये है हमारा कानून, ये है हमारी इंतजामिया। जी बहुत शुक्रिया, राना सद्दाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मानावाला में थाना भक्की की हदूद में चारचक रसाला के करीब पाक फौज ने भारतीय ड्रोन मार गिराया। ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। पुलिस मौका पर मौजूद है, मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जंग में पुलिस ने खतरनाक डकैत परवेज को फरार करने की कोशिश नाकाम बना दी। 3 मुसल्लह डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में जेरे हिरासत मुलजिम जख्मी हो गया। मुलजिमान फसलों में छुप गए। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मी डाकू नकबजनी और डकैती समेत 23 संगीन वारदातों में मुलविस है। DPO जंग ने कानून शिकन अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कसूर में DPO मोहम्मद ईसा खान की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास में पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें स्टेशन रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए गए। सिक्योरिटी इंतजामात को मजबूत करने और असलहा की दुरुस्त हालत में रखने की हिदायत की गई। पुलिस अफसरान इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 से राब्ता में रहेंगे। सरहदी इलाकों और अवामी और निजी इमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। DPO ने कहा कि पुलिस अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़ी है और मुल्क की सालमियत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।